Please come to page number 81, children. Please come to page number 81. I hope all of you are on page number 81, children. जी ठीक है. On page number 81, dated 14 February 1984. बेटा हम जो read कर रहे हैं ना, this whole chapter is based on a diary which was written by Sangeeta madam. She is teaching. She at that time was teaching in Kendriya Vidyalaya, and she was the only teacher who was from the Kendriya Vidyalaya. The other, they were like, hold on, let me look at the stats. Yes. So there were 20 in the camp. There were 20 teachers from Kendriya Vidyalaya. A funny incident took place in the evening. Who was Kundombi? Kundombi was one of the teachers from northeastern states, and she was very poor in Hindi. She was very poor in Hindi. She could not speak Hindi. It was very difficult for her to communicate with the other people. And our teacher Sangeeta, she was feeling very bad that even after spending like 21 days with the children, she was not able with the children she was not able to uh, even after completing what do you say 21 days with a group of northeastern teachers from northeastern states. What happened? They were not able to communicate well with each other. So what happened on 14th February 1984? Evening ka time pa, Kundombi was feeling, they were basically tracking, and they all were feeling very hungry, and Kundombi was feeling extremely hungry. What she did, वहां पे खेत थे किसी के, और उस खेत में जाके उसने क्या किया, दो खीरे तोड़कर ले आई वो. पर वहां पर खेत में उस खेत की देखभाल करने के लिए there must be some women in the field. That woman saw, she got caught hold of her bag. Right? Just then a woman came from behind and caught hold of her bag. She started saying something to Kudombi in her own language. Now, they are in the state of Himachal, right? Sorry, they are in the state of Uttarakhand. Do they know their language? Now, this woman knows a language is spoken in Uttarakhand, right? And she started speaking. She started speaking in her own language. Kundombi was from northeastern state, and our Sangeeta madam was also from some other state. They both were not able to understand the women's language, and then the women started saying something, right, in her own language or some language of Uttarakhand, and they both were not able to understand. So it was a whole mess that was being created. No one was able to understand anything. At the end, what happened? We could not understand what she was saying. Kundombi was trying to explain her in Mizo language. She was from Mizo. मैम So she was explaining the woman in मैम पेज नंबर क्या है? 81. number 81. Page number 81. Now, please come to page number 82. Page number 82. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand. Finally, I folded my hands to say that we are sorry. And then Sangeeta madam had no choice, but she had to fold her hands like this to make her understand that they are very sorry. By then, our group had gone far ahead. So ये सारी इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ, जो ग्रुप था जिनके साथ वो ट्रैक कर रहे थे, वो क्या चला गया, बहुत ही आगे चला गया. It was already very. पेज नंबर क्या है? Page number 82, beta. Page number 82. We are here. By then, our group had gone far ahead. It was already getting very dark. I thought we had lost our way. तो उन्हें ऐसा लगा कि क्योंकि डार्कनेस की वजह से भी बेटा अगर आप उस रास्ते पे भी हो देन ऑल्सो उस रास्ते पे आप भटक जाओगे. अगर आपको वो रास्ता नोन भी है तो भी डार्कनेस की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा. यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर. नाउ वी वर रियली स्कैर्ड. अगर आप वहां पे अगर सपोज कॉम्पस भी यूज कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो, पर वो इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो रीडिंग है वो आपको दिखाई नहीं देगी. And it was so dark, it was this dark that they were not able to see with their torchlights. Now we were really scared. We could not see anything even with our torches.
I started sweating even though it was cold. Why were they sweating? Why were they sweating? Because they were very scared. They were utter scared. We have lost our way. We are not with our group. There's some sense of, I mean, when we are in a particular society, when we live in such a beautiful society, which is, uh, we see that security guards are standing everywhere. Security guards are standing at the checkpoints. We are living in a society where there are a lot of buildings, and many people are staying in that. Many people are staying in those houses, right? तो बेटा what happens is that we get a sense of security कि अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है we can ask for help. But अगर आप alone हो तो can you ask for someone's help? No, you'll be left alone. You have to find a way by yourself. Now we were really scared. We could not see anything even with our torches. I started sweating even though it was very cold. I called out loudly, "Where are you all? Can you hear me?" So she was crying for help, but was there anyone to hear? My voice echoed in the mountain. We both started to whistle loudly and Mana clap. Khan present, ma'am. This was the kind of signal that they wanted to. This was a kind of signal that they wanted to give. My voice that what did they do? They started shouting very loudly, as well as they used their torches. They started whistling loudly. इस whistle जो होती है बेटा वो सुनाई देती है. So whistle किया उन्होंने अपनी torches को जलाया. Probably the group had noticed that we were missing. और आपको पता होता है जब आप ग्रुप में जा रहे होते हो तो कुछ टाइम तक उनकी आवाजें नहीं आती हैं, उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं होती है, तो देन यू आर एबल टू नोटिस दैट दे हैव बीन मिसिंग. We heard some whistles at a distance. I understood the signal. Now, क्योंकि वो whistle कर रहे थे and that whistle was heard by the other members of the group, the other members of the group whistled in order to communicate to them that we are able to hear you. And it was very dark. They were very scared. So what solution did they take out? We held each other's hand tightly and waited. Kundombi felt that we should keep talking. We started singing a Mizo song loudly. So in order to curb the fear, children, what did they do? They started singing a song. एक मिनट. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. 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 Okay, children. Are you all Okay, ma'am. Now, Ma'am, your voice is slow. Yes, Ma'am, ma'am. my voice is clear. Yes. Ma'am, voice is clear. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा. अभी आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? Is my voice Yes, ma'am. डबल आ रही है. very good? Is there anyone in your class whose language you do not understand or who does not understand? अच्छा ठीक है. हाँ, they were singing very loudly and their voice got echoed in mountains. Their group members were able to hear their voice very nicely. And then Kudombi felt that Kudombi was like we should keep talking so that we are एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं. उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, वो सॉन्ग सिंग कर रहे हैं. क्योंकि बेटा हमेशा ऐसा होता है ना कि जब भी हम म्यूजिक सुन रहे होते हैं, जब भी हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, राइट? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है?
Please raise your hand. Don't speak anything, but raise your hand. See, lot of children in my class, they all love singing the song, listening to the song, because listening to the song, and these are all, singing is a form of art. Singing is a form of art, and को आप आर्ट का कोई भी फॉर्म ले लीजिए बेटा, बी इट सिंगिंग, बी इट डांसिंग, कोई भी आप एक्ट कर रहे हो, ड्रामा है, तो उसमें क्या होता है ना, आपके हमेशा आपका एक कंसंट्रेशन लेवल बनता है, यू आर एबल टू फील द वर्ड्स। आपको ड्रामा भी करना है तो आपको डायलॉग्स को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, सिचुएशन को समझना पड़ेगा, है ना बेटा। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं, ये सारी चीजें जब हम करते हैं, तो वी गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, और जहाँ पे भी हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, हमारा इन्वॉल्वमेंट अगर किसी इस इन एक फॉर्म ऑफ आर्ट में हो जाता है ना, तो it continuously gains our commitment level, our confidence increases, and there is some sense of satisfaction, there is a sense of achievement. So बच्चे, अगर आपकी क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा है जिनकी लैंग्वेज आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है, तो देन उनसे कम्युनिकेट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कोई ऐसा बच्चा है जिनकी वॉइस, जिनकी जो लैंग्वेज है आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है? अच्छा, एक बात बताइए बेटा, आप स्कूल में आते हैं तो आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, या फिर योर रीजनल लैंग्वेज? मैम इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश मैम इंग्लिश एंड हिंदी। So I might English and Hindi. मैम इंग्लिश एंड listen to me very carefully. If you all speak very, if you all speak together, I will not be able to hear any one of you. I will not be able to hear any one of you children. So please, ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए। अगर मैं आपसे पूछती भी हूँ तो प्लीज, मैंने अगर मेंशन नहीं किया है कि आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, तो प्लीज आप कमेंट में ही रिप्लाई किया करो। नाउ सो हमारी क्लास की कंडीशन अब ये है कि हम हिंदी और इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। हिंदी इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई, और हिंदी जो है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया में बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। आप सब लोग हिंदी पढ़ते हैं, राइट, है ना? जिस तरह से आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज का पीरियड होता है, उसी तरह से हिंदी लैंग्वेज का भी पीरियड होता है। Now, have you ever lost your way? What did you do then? तो क्या आप ऐसा हो गया है, क्या ऐसा हुआ आपके साथ में कि आप लोगों ने, क्या ऐसा हुआ आपके साथ में कभी बेटा कि you have lost your way? Please try to remember a situation. No, हिमानी बोल रही है कि नहीं है। It has never happened to me where I have lost my way. है ना? और फिर उस अंशिका के साथ में भी ऐसा नहीं हुआ है, निकिता के साथ में भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई है। No, most of the people are saying that they have not lost their way. But when I was very new to this colony, I was so scared to move out because जब मैं यहाँ पर आई थी बच्चों, तो मुझे कहाँ पे स्टे करना था, मुझे गेस्ट हाउस में स्टे करना था। आप सभी को पता है ना गेस्ट हाउस कहाँ पर है? आप सभी को पता है ना? हाँ, मैं वहां में स्टे करती थी और स्कूल नंबर 2 तक मुझे आना होता था, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी उस दिन। और जब मेरी रिपोर्टिंग हुई थी स्कूल में, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज रिपोर्टिंग इन स्कूल नंबर 3, school number 4, and then I came here because I had to join this. The next day after my medical test, I came here. So it was, had my father not been with me, I would have, जब हम लोग पहले दिन ही यहाँ पर आए थे, finding school number 4 was very difficult for us. We're just trying to figure out किस तरह से जाना चाहिए हम लोग को, because the way is very twist and turny, right? It has got a lot of turns. अगर कोई आपको बताने भी लगे कि आप पहले आप सीधा यहाँ से जाओ, फिर राइट लो, फिर उसके बाद में राइट लो, फिर उसके बाद में लेफ्ट लो, फिर उसके बाद में राइट लो, obviously you will get confused. So यस मैम, बहुत ऐसा होता है। ये ऐसा क्यों है बेटा हमारे यहाँ पे?
जो एरिया है वो एक मेज की तरह है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे जो एमिनिटीज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो भी स्कैटर्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर हॉल बना ना। अगर आप देखोगे क्लस्टर्स है हमारे एरिया में, राइट, हमारे एरिया में क्लस्टर भी होते हैं, तो दैट पर्टिकुलर क्लस्टर इज फॉर दैट एरिया, है ना। अनु प्रताप के लिए एक क्लस्टर रहेगा, राइट। फिर अनुकिरण के लिए एक क्लस्टर है, अनुआशा के लिए भी वहां पे, यहाँ पे कॉपरेटिव, एक मिनट, यहाँ पे क्लस्टर पड़ता है। और एक कॉमन कॉपरेटिव भी है, राइट। यहाँ पे आपको बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं, कॉस्टली आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं, कॉस्टली आइटम्स होते हैं बेटा, वो मिलते हैं, राइट। जी। So it's easy when a place is very big. It's easy to lose our way. और एक बार ऐसा था, I remember an incident in which I was very young. I was like 3 to 4 years old. और उस टाइम पे मेरी सिस्टर भी, she was like 2 years old. तो हम लोग क्या करते थे, जब भी हम लोग किसी मॉल में जाते थे, उस टाइम पे इतने बड़े मॉल्स नहीं होते थे, बट देयर यूज्ड टू बी शॉप्स जहाँ पे मल्टीपल स्टोरी शॉप। आप अगर बहुत टाइम पहले की बात नहीं है बेटा, 2000 के करीब की बात है, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी। उसमें क्या होता था कि बहुत सारी शॉप्स एक साथ होती थी। तो मम्मा क्या बोलती थी, एक काम करो, मेरे सूट का एक कोना जो है वो एक बेटी पकड़ लेगी, दूसरे सूट का कोना दूसरी बेटी पकड़ लेगी, और अच्छी तरह से पकड़ के रखना, मूवमेंट करेंगे, शॉपिंग करेंगे, गुम नहीं होना है। But it happened that I got lost. और फिर उसके बाद में I was lost, I was not able to see my parents, and फिर उसके बाद में what happened, as I was about to move out of the shop, है ना, I was about to move out of the shop, तभी क्या हुआ कि वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसने देखा that I was alone and he knew that I've lost my way, I'm not able to find my parents. He asked me to sit beside himself. And then when my parents, they were searching for me, they were able to, and he even informed, उन्होंने रिसेप्शन पे इन्फॉर्म कर दिया था कि इस तरह से एक लड़की मिली है, तो अगर कोई पेरेंट पूछ रहा है कि हमारी बच्ची गुम हो चुकी है तो प्लीज आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये तो हो गई एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी और बताती हूँ। हम लोग क्या है, पोर्ट ब्लेयर में पहले रहते थे, राइट। तो पोर्ट ब्लेयर से अगर हमें हमारे गांव जाना है, वेयर इज माई गांव, वेयर इज माई विलेज, I hail from Kahadi village, which is in Jhajjar district in Haryana, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है ना बेटा, अगर आपको वहां जाना है ना, तो सबसे पहले तो आपको समुद्र, वेयर इज पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, इट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहाँ पे पड़ता है बेटा, जो पेनिनसुला प्लेट्यू है उसी के राइट साइड में, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, पोर्ट ब्लेयर से हमें जाना होता गांव, तो हम क्या करते थे, शिप, वहां से दिस नो वे, इफ यू विश यू हैव जस्ट 2 ways टू मूव। पहला वे यू टेक अ फ्लाइट, दूसरा वे यू हैव टू गो बाय शिप। तो एक बार हम शिप में, इट वाज अ काइंड ऑफ अ क्रूज शिप, वी एंजॉयड अ लॉट। हमारे केबिन में देयर वर 2 sets of beds for 2 families। तो वहां पे देयर वर लॉट ऑफ फैसिलिटीज, लाइक छोटा सा देयर वाज अ पार्टी हॉल था वहां पर, और देयर वाज अ पूल आल्सो। ऐसा हुआ कि फादर मेरे को ऊपर लेके गए दिखाने के लिए कि शिप, मतलब इतना बड़ा शिप है, तो आप थोड़ा ऊपर जाओ, और लिटरली बहुत बड़ा शिप रहता है वो, एंड यू आर एबल टू सी। एंड अगर आप वहां पे अंदर भी बैठे हो ना, तो गोल होती है, गोल विंडो रहती है उसमें शिप में, right, you're able to see. So I really was able to, I used to be very happy seeing outside. I used to keep on seeing dolphins swimming हमेशा। It's a very nice experience. अगर आपको टाइम मिलता है बेटा, go out with your parents. This is the time where you're not having a lot of pressure on you, और आप घूम सकते हो। तो a trip in cruise ship is not a very, like, it will not cost you that much. आप फैमिली ट्रिप पे एक बार तो एटलीस्ट आप फैमिली ट्रिप के लिए जा सकते हो, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। सेलिंग इन अ सी इज इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड एट टाइम्स इट यूज्ड टू हैपन कि 2 दिन की ट्रिप होती थी, 2 दिन की ट्रिप होती थी, और क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा खराब होता था, तो शिप जो है पहले आगे जाएगी, फिर विंड आ रही होगी तो वो पीछे आ जाएगी, फिर वो आगे जाएगी, फिर वो पीछे आ जाएगी।
So it used to take 5 days to go to mattress. ठीक है, ऐसे ऐसे सिचुएशंस भी हमने देखी हैं. एंड सेलिंग इज वेरी बैड, लाइक बहुत वॉमिटिंग होती है. पीपल आर नॉट यूज्ड टू इट, दे विल ऑलवेज फेस हेडेक, वॉमिटिंग. बट ये है कि क्रूज शिप में अगर आप जा रहे हो, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिलती है आपको, खाना बहुत अच्छा अवेलेबल रहता है, स्लीपिंग स्पेस आपको, जैसे मैंने बताया कि एक केबिन में 2 बेड्स होते हैं, राइट. एंड द बेड्स आर लाइक, जो दो क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, बट जो कपल बेड्स, जो मैम डबल बेड. यस, डबल बेड जो रहते हैं वो होते हैं. तो वन कैन स्लीप अबव एंड वन कैन स्लीप बिलो. तो वो एक फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है. इफ अ फैमिली इज हैविंग लाइक एक जो एक कपल रहेगा, उसके 2 बच्चे होंगे, तो दे कैन इजीली मैनेज ऑन वन बेड. इस तरह से था. एंड द केबिन वाज वेरी ब्यूटीफुल. तो अच्छी अमाउंट पे की थी, तो अच्छी फैसिलिटीज भी मिली, एंड द एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस. जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना कि सेलिंग इन सी इट इज डिफिकल्ट. अगर वेदर खराब है, देन यू नो इट माइट हैपन कि आपकी शिप जो है वो बहुत ज्यादा सेल. और शिप जो है ना, जब वेदर बहुत खराब होता है, इस तरह से मूवमेंट करती है, आप झूलते रहते हो. जब आप वॉक करना चाहोगे ना, तो आप हाउ विल यू वॉक, लाइक यू विल बी वॉकिंग लाइक दिस इन अ शिप. इस तरह से वॉकिंग होती है, यू नॉट एबल टू वॉक, क्योंकि हिलती है बहुत शिप. Now, why do you think Khondombi would have sung loudly? Khondombi would have sung loudly. तो उसने खुंदुमी ने बहुत जोर जोर से गाना क्यों गाया? क्योंकि वो चाहती थी कि वो जोर से गाएं, तो उनकी वॉइस जो है वो माउंटेन्स में इको हो. और अगर उनकी जो अदर टीम मेंबर्स हैं, तो वो उन्हें सुने, और they'll be able to find them. क्योंकि वॉइस देखो, अगर अगर दिस इज अ वेरी गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बच्चे? क्योंकि मेरी वॉइस जो है आप तक पहुंच रही है, आपकी वॉइस मुझ तक आ रही है. जिस लैंग्वेज का मैं यूज कर रही हूँ, दैट इज अंडरस्टूड टू यू, राइट. और अगर हम किसी के साथ में रहते हैं, उनकी लैंग्वेज भी हम नहीं समझ पाते हैं बच्चों, तो भी उनकी वॉइस का हमें पता रहता है ना. यस, दिस वॉइस बिलोंग्स टू माई मदर, दिस वॉइस इज ऑफ माई फादर, राइट. है ना बेटा? ऐसे होता है ना. यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड्स वॉइस. यू कैन इजिली मेक आउट इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें से आपका एक फ्रेंड आके कुछ बोलता है, चिल्लाता है, एंड देन यू ऑल्सो हैव सम निकनेम्स, राइट. यू ऑल्सो हैव निकनेम्स फॉर योर फ्रेंड्स, राइट. तो अगर वो चिल्ला देगा, तो आपको पता है कि आपका डेफिनेटली आपका फ्रेंड बोल रहा है. अगर बहुत सालों के बाद में भी उसने वो नाम बोल दिया ना, देन ऑल्सो यू विल राइज यू आर बीइंग कॉल्ड बाय दिस फ्रेंड ऑफ योर्स, है ना. So this is a very nice experience. So Kundombi was she sung loudly because she wanted to be heard. She wanted to be heard by her group members. Excuse me, children. मैम का पे फोटो तो दिख रहा है, मैं एशियस का तो दिख रहा है, फोटो तो दिख रहा है. क्या किसका दिख रहा है, कौन दिख रहा है? ये काय के लिए हटा रखे हैं? क्लास चल रही है तेरी? Ma'am, your mic is off. Off. Am I audible to you now? Am I audible? Yes, ma'am. बताओ, स्टोरी सुन के कैसा लगा? स्टोरी बहुत अच्छा. मैम बहुत मजा आया. मजा आ गया. बहुत मजा आया.
चलो, तो हैव यू एवर सीन समवन डूइंग स्पेशल? अगर आपको बहुत डर लग रहा होता है तो आप क्या करते हो? अंशिका, टेल मी, अगर आपको कुछ डर, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, व्हाट डू यू डू? अगर मैम मुझे बहुत ज्यादा डर लगेगा तो मैं हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी और ऐसे ऐसे करके चलूंगी। अगर कुछ मिलता है तो कोई मिलता है तो उनसे मदद मांगूंगी और फिर अपने घर तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, दैट्स रियली नाइस। इवन जब, और मैं इतनी स्केयर थी, आई टेल यू, व्हेन आई गॉट अ हाउस इन अनुकिरण, आई यूज्ड टू जस्ट गो टू स्विमिंग पूल। मैं बास्केटबॉल के पास में जाती थी, बास्केटबॉल कोर्ट के पास में जाती थी, वहां से नीचे उतरती थी, स्विमिंग पूल तक जाती थी और स्विमिंग पूल से ही वापस आ जाती थी, because I was that scared to be lost. And it happened to me that, when I was trying to move to different colonies, I got lost. Anu Pratap में जाके I got lost. What to do? I was not able to remember the way. Then I asked. There were some aunties who were sitting in a group, and I asked them, where should I go? Like, I've lost my way and I want to go to Anukiran. So they used to tell me, and it happened that I was lost my way for 2-3 times. And they were very generous people. They used to tell me, okay, it's okay, यहाँ से चले जाओ, कोई बात नहीं. I used to go on the same spot, and I didn't used to remember. अच्छा, यहाँ से कौन से way में जाना है? यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, या फिर इस तरफ जाऊँ? That was really funny. So, what do you do to overcome your fear? Now, when I am fearing, first of all, so if I'm fearing, oh my God, I have this, I'm the anchor of an event. Will this go fine or not? What do? I pray to the God. And I have this belief, I have this faith that if I worship in the morning, things will be fine. Things will definitely be fine. And one more thing, I always keep myself, when I have fear, what happens to me is I feel very anxious. There's a lot of movements that, I will be moving from here and there. I'll be moving, like, to and fro movement मेरी बहुत ज़्यादा रहती है. I'm not able to keep pace with things. और चीजें जो हैं वो हमेशा गलत, थोड़ी बहुत तो गलत हो ही जाती हैं अगर इस तरह से. I'm very nervous. But then, और एक चीज बेटा, what you can do is when you are nervous, just keep yourself calm down, कर लो थोड़ा अपने आप को. उल्टी काउंटिंग, 10, 9, 8, 7, 6, इस तरह से उल्टी काउंटिंग करो, तो थोड़ा आपका जो ध्यान है ना वो भटक जाता है. जब आप कोई भी चीज ऐसा जिसपे आपका कॉन्सेंट्रेशन लगता है ना, आप वो कर लो, तो आपका जो फियर लेवल है वो कम हो जाएगा. या फिर यू डू समथिंग which is very exciting to you. Now these people, when they were lost, what did they do? They tried to, they holded each other's hand. So अगर when you are also, जब आपको भी, when you are also fearing, आपको भी किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो आप क्या करोगे? अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ लोगे, राइट? बिकॉज हम ऐसा क्यों करते हैं बेटा कि हम किसी का हाथ पकड़ लेते हैं when we are very scared? ऐसा क्यों करते हैं हम? When we are very scared, what do? We hold someone's hand. Especially when I'm having this fear, I talk to my parents. Now my parents are not near me, but I do talk to them. Why? Because I have this faith inside me that they have got the real experience of the life. मैंने उतनी जिंदगी नहीं देखी है जितनी उन्होंने देखी है. दूसरी चीज कि I have received love and affection from their end, right? So they will always be, मैं जैसी भी सिचुएशन में हूँ, कैसी भी सिचुएशन में होंगी, because they love me, because they are my parents, they will always try to help me. अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत बोलेंगे, सही हूँ तो सही बोलेंगे, मुझे कभी कोई गलत चीज नहीं बताएंगे, गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे. दिस इज द फेथ दैट अ चाइल्ड शुड हैव इन द पेरेंट्स. और यही फेथ अपने फ्रेंड्स पे भी होना चाहिए बकायदा. आपके फ्रेंड्स जो हो अच्छे हो, आपका बुरा ना चाहते हो. Now, there is a section, try, on page number 82. Ask your friend for a book without speaking. Try to explain something to the class in the same way. बेटा, you will try doing this. You can do this. आप अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल कर सकते हो, बोल सकते हो कि I need this thing. ठीक है, तो हो सकता है वो अंडरस्टैंड करे, हो सकता है वो अंडरस्टैंड ना करे, ना कर पाए, ऐसा तो नहीं है. अगर वो आपका फ्रेंड है तो जरूर आपको समझने की कोशिश करेगा.
Hold on. Now, a special guest. Now, please come to the section. A special guest. वो कब आया? 15 February 1984 को. After dinner, we met a special guest. उनका नाम क्या था? बजेंद्री पाल. Uh, she had just been selected as a part of the team to climb Mount Everest. वो घर पहुंचते. ये जो पहला केस हुआ था, a funny incident that happened on 14 February 1984. और नेक्स्ट दिन ही क्या होता है कि एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया जाता है जिसका नाम था बजेंद्री पाल. She was selected as a part of the team to climb Mount Everest. They were all वो किसके लिए ट्रेनिंग ले रहे थे? ठीक है, तो वो ट्रेनिंग किसकी ले रहे थे? माउंटेन क्लाइंबिंग के ले रहे थे. एंड दे ऑल हैड दिस फेथ एंड कॉन्फिडेंस कि कभी ना कभी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग दे विल बी क्लाइंबिंग सम माउंटेन व्हिच इज एट अ वेरी गुड हाइट. तो उसी टाइम पे बजेंद्री पाल जो है, शी वाज सेलेक्टेड इन द टीम टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. तो बच्चे, अगर कोई भी इस तरह से सिलेक्शन लेकर आता है, नाउ अगर हमारी नाउ जिस तरह से इट हैपेंस इन स्कूल्स ना, कि पहले बच्चे क्लस्टर खेलते हैं, फिर रीजनल्स के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद में स्टेट के लिए खेलते हैं, फिर नेशनल्स के लिए खेला जाता है, फिर एक कैंप लगता है, उसमें मतलब आप इंडिया के लिए खेल रहे होते हो. तो यही है बेटा, जो जिस लेवल. तो अगर आपके सामने, नाउ सपोज इफ आई हैव प्लेड टिल रीजन, मैंने क्या किया, मैंने क्लस्टर खेला, सिलेक्ट, मेरी टीम सेलेक्ट हुई, फिर उसके बाद हम रीजनल्स खेलने के लिए गए. somehow it happens that there we come to, we are able to meet a person who has cracked nationals, who has gone for nationals to play a particular sport. तो क्या होगा? ओ माय गॉड, इसने तो नेशनल्स क्रैक करके रखा हुआ है ना, ये तो नेशनल्स के लेवल तक खेले हैं, इनको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं हमें क्या करना चाहिए. इन्हें बहुत एक्सपीरियंस है जिस फील्ड में हम अभी जस्ट पैर रखे हैं. राइट है ना बच्चे? हम इसी तरह से सोचते हैं ना. सो वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर extremely excited to meet this person. So the same thing was happening with Bajendri Pal also. He was selected as a part of the team to climb Mount Everest. She come to seek. Now वो क्यों आई थी इस कैंप में? Because she wanted to take blessings of the Bajendri Brigadier Gyan Singh. She wanted to take blessings of Brigadier Gyan Singh. It was a very happy evening. 15 February को इवनिंग के टाइम पे उन्होंने क्या क्या किया? We were all singing. Bajendri also joined us in singing and dancing on the famous Pahadi song Bedu Pako Bara Mase Kafal Pako Cheta मेरी छैला. So this is some kind of song जो कि उधर का रीजनल सॉन्ग है, पहाड़ी सॉन्ग है. At that time, we had no idea that Bajendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. तो उस टाइम पे ऐसा होता है ना बच्चे, हम ऐसे सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही होता है बेटा, कि हम किसी चीज को ना बहुत बड़ा बना लेते हैं, लेकिन इट इज द एफर्ट्स ऑफ अ पर्सन. अगर किसी एक बंदे ने सोच लिया कि चाहे ये टास्क कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे ये टास्क कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या बवंडर. फराज, Yes, ma'am. एक मिनट. हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
यस मैम। ठीक है, प्लीज आवाज मत करो, और जो भी आप यहाँ पे कमेंट में बात कर रहे हो प्लीज उसे बंद करो, ठीक है। मैम ये लोग फ्री फायर गेम की बातें कर रहे हैं। क्लास इतनी अच्छी क्लास चल रही है आपकी, आप इतने मजे से पढ़ रहे हो, हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ गोइंग इन द कमेंट सेक्शन एंड रिप्लाइंग एंड टॉकिंग? इज दिस द डिसिप्लिन दैट यू मेंटेन इन द क्लास? If there's something that you need to talk, आपके पास व्हाट्सएप रहा, आप मैसेज करो अपने फ्रेंड को, आपको कोई हेल्प मांगनी है, तो दिस कैन हैपन, नो, दिस कैन हैपन आफ्टर द स्कूल, दिस कैन हैपन आफ्टर योर क्लास आवर्स। आपको बहुत टाइम मिलता है बच्चे, आपकी क्लासेस जो है 11 बजे फिनिश हो जाती हैं, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम रहता है। After so Bachindri Pal had come, and then they were enjoying. She had come to take the blessings of the brigadier, and she enjoyed a lot with the team members also. And at that time, Sangeeta didn't knew that she will be the first woman to climb Mount Everest and the 5th woman in the whole world to climb that mountain. Camp in the snow. तो अब बच्चे ये लोग क्या कर रहे हैं? They have started trekking. On 18th February 1984, after taking a rest of 16-17, 2 days, they took rest. And after that, they had decided that they will go for trekking and climb the mountain, and there they will set up their camp. So please come to page number 83, children. Please come to page number 83. We were standing at a height of 2,134 meters. So camp. मैम हमें इसे लिखना है। नहीं, आपको नहीं लिखना है, राइटिंग द नेम ऑफ द टॉपिक, कैंप इन द So we were standing at a height of 2,134 meters. We were to spend the night here. Everyone was busy trying to put up the tent. We used double-layered plastic sheets. तो वो कितनी हाइट पे हैं बच्चे? 2,134 meters. 2,134 meters above the ground level. हमेशा ये जो हाइट नापी जाती है ना बेटा, ये हमें सॉरी above the sea level से मापी जाती है ये, ठीक है। तो जो भी सी लेवल होगा उससे 2,134 मीटर्स पे, उससे 2,134 मीटर्स पे इन लोगों ने अपना they were currently at this position, और उन्होंने अपना कैंप सेटअप करना था। एंड everyone was very busy trying to put up the tent. We used double layered plastic sheets. तो उन्होंने क्या यूज किया? नाउ टेंट बनाने के लिए उन्होंने अपना जो टेंट है उसे सेटअप करने के लिए बेटा क्या दे यूज डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स। वो इस तरह से क्यों? लेट अस सी। डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स यूज की। We use double layered plastic sheets for the tent and for the ground. तो इवन जो टेंट लगाया उसमें डबल लेयर प्लास्टिक शीट यूज की, और जो ग्राउंड पे जो उन्होंने प्लास्टिक बिछाया वो भी डबल लेयर का ही था। Why were they using? The air between the layers would help us to keep warm. तो इन जो डबल लेयर होगा बेटा उसमें क्या होगा? 2 लेयर होगी प्लास्टिक शीट की, तो उनके बीच में जो एयर ट्रैप होती है वो गर्म रहेगी, और इससे उन्हें क्या होगा? ठंड नहीं लगेगी। We put in the pegs and began to put up the tent. तो धीरे धीरे pegs क्या होते हैं बेटा? जो स्टूल होते हैं, जो टूल रहते हैं इस तरह से, जो इसके नेल के शेप में रहते हैं, उनको हम क्या करते हैं? जमीन में गाड़ते हैं और एक रोप टाई करते हैं उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें जो टेंट है उसे टाई करना है, राइट? So they used the pegs and they were trying to set up the tent.
As we tied it from one side, the wind blew the tent from the other side. So they were facing a lot of difficulty. वो एक साइड से जब टेंट को क्योंकि बच्चे कभी भी आप टेंट लगाओगे तो आपको पहले इस साइड को लगाना पड़ेगा, इस साइड का लगाओगे, फिर उसके बाद आप दूसरी साइड का लगाओगे. तो व्हाट वाज हैपनिंग, जब वो इस साइड का लगा रहे थे, द विंड वाज एक्टिंग देयर एनिमी एंड इट ब्लू अवे दिस पार्ट. तो जब वो लेफ्ट साइड लगाने की कोशिश कर रहे थे तो द विंड ब्लू अवे द राइट पार्ट. जब वो राइट साइड लगाने की कोशिश कर रहे थे तो द विंड वाज ब्लोइंग द लेफ्ट साइड ऑफ द टेंट. तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, इतनी तेज हवा चल रही थी कि टेंट लग ही नहीं पा रहा था. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. तो उन्होंने क्या किया, बहुत मुश्किल के साथ में उस टेंट को लगाया और फिर उसके बाद में उस टेंट के आसपास एक ड्रेन डिग की. We were feeling very hungry. We collected some firewood and stones to make a चूल्हा. तो बच्चों आपने गांव में चूल्हा देखा होगा ना, आपने गांव में चूल्हा देखा? यस मैम. बेटा वो वैसे ही होता है, मिट्टी का बनाया जाता है और उसके ऊपर थोड़ा स्पेस रहता है. नीचे क्या होगा, आप आग जलाओगे, नो मैम. क्योंकि वो रखोगे, उसमें आग जलाओगे, आग की लपटें जो है वो ऊपर आएंगी और फिर क्या होगा, उसी के ऊपर आप जो पतीला रहेगा उसमें आप फूड डालोगे और फिर उसके बाद खाओ. मैम वो मेरी बुआ जी के पास है. जी. तो इसी तरह से गाँव में और बाकी जो बहुत ही जो रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ पे इस तरह से चूल्हे बनाए जाते हैं और उसी के ऊपर खाना बनाया जाता है. और पहले जमाने में तो ऐसा होता था कि अभी हमारे पास में यूटेंसिल्स है ना, उस टाइम पे यूटेंसिल्स नहीं होते थे. तो क्या करते थे, जो मिट्टी के जो घड़े होते थे, मिट्टी की यूटेंसिल्स होते थे, उसमें खाना बनाया जाता था और बहुत ही टेस्टी. आप क्या करो, आप खीर घर पे बना के देखो स्टील के वैसे में. कभी आप गाँव जाते हो तो जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको अच्छी तरह से साफ करके और उसमें खीर बना के देखो, बहुत ज्यादा टेस्टी खीर बनती है उस मिट्टी के घड़े में. कोई भी खाना आप बनाओगे ना बेटा, आप गाँव में जाओगे तो वो खाना बहुत मैम वहाँ का जो पानी होता है वो बहुत मेरा बढ़िया है. मैम जो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो हमें भी लिखना है. नहीं बेटा, नहीं लिखना है. वीरेंद्र सिंह साइलेंस. मैम मेरे गांव में भी है. मैम मेरे गांव में भी है. अच्छा, let us take a break. The session for today has end up. हमने सेशन एंड कर, मैं अभी सेशन एंड कर रही हूँ. We'll take a break and then the next class will start. So stay tuned. Thank you, children. Have a great day ahead. मैम